In the previous module, we learned about the hydrostatic forces acting on bodies that are placed horizontally and or vertically in the fluid or in the liquid. So this now in this module we will consider a case in which a body is placed in inclined position and it is submerged inside a liquid. So if we see this diagram here, we can see that in this diagram OO is the surface of the liquid. Okay, OO क्या है? Surface of liquid है. एक body है. So this one is the body that is placed. This body and this body is placed here at an angle at a degree theta degree here. This body is placed at theta degree here. So this is the body that is placed at angle theta degree. और अगर इसको top view से हम देखें, then what this is somewhat the body which will look like. Okay. Now there are some things that should be kept in mind here. That x bar is the distance of the body. So this is the distance of the body. This is the distance of the center of gravity. Okay, so the center of gravity is here, and here it is the center of pressure. Okay, so where the total pressure acts. तो C जो है ये सेंट्रल प्रेशर है जो कि डिस्टेंस है h bar from the surface OO. Okay, now what we will have to take out here is that the first thing that we need to take out is total pressure. As we know, what is total pressure? Total pressure is the is nothing but the force. Total pressure is the force. Okay. So before taking out total pressure, हम क्या करेंगे? एक बॉडी में कैलकुलेट करने से पहले एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे. लेट अस कंसीडर दिस स्ट्रिप एंड दिस स्ट्रिप. ओके, इस स्ट्रिप में हम पहले कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ स्ट्रिप, अगर एक एरिया ऑफ द स्ट्रिप देखा जाए, so what will be the area? Its thickness, as we can see, is dx. Here the thickness is dx and its width is b. So the area will be b into dx. Now what will be the intensity of pressure? Intensity is nothing but the magnitude of pressure. Intensity of pressure, it is equal to rho g h. Okay, what is h? H is the height. Okay, so in this body we see that this is the dx, the area, the thickness of the strip is dx and the width is b. Now what is the height? We will see this. हाइट देखिए, तो यहाँ से हम h डिलीट मार देते हैं और h की जगह में भी कुछ क्या होगा वो देखते हैं. देखिए h is the height. So in this case, what is the height? In this case, the height of this strip, the height of this strip is L. It is at L distance. But क्योंकि ये एक inclined position है. What is this? This is the inclined position L. और ये कितना एंगल में है? थीटा एंगल में. So जब भी हम height consider करते हैं, generally we consider it from the top of the submerged body. So here the height will be, we can divide this L into two components. One is L cos theta and another is L sin theta. Okay, तो L sin theta जो है उसको vertical component मान सकते हैं. So we can say that this height of this strip is at distance L. Okay, so we can write that. So in place of H, we will write rho G into L sin theta. Now, what is the total pressure on strip? अगर total pressure on strip देखा जाए, तो what will be uh, total pressure on strip? Total pressure on strip will be equal to area of strip into intensity of pressure. अगर ये दोनों को हम multiply कर दें, तो total pressure निकल जाएगा. So it will be equal to rho GL sin theta into B dx. ओके, ये है टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप. अगर हमें टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप से निकालना पड़े टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस, ये जो बॉडी है इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना आ रहा है अगर निकालना पड़े, देन व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट इट. हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो नाउ टोटल प्रेशर ऑन सरफेस, तो सरफेस में टोटल प्रेशर कितना होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एल साइन थीटा बी
dx. Now what we will do is we will take out the constants. जो भी constant है यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे rho g sin theta. यहाँ से इतना निकालने के बाद we are left with l b dx. And we know here that b dx is nothing but this is the area, and area into distance into l, here we say this is the L. We can say if this is the integration, we can say that L into b dx is nothing but equal to the moment of surface, or the what we can say it as the moment of surface area. Okay, this is the moment of surface area. ये एक surface है, consider this is the surface dA and it is present at a distance L. So we can say that this dA into L का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट विल बी द मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया. तो इंटीग्रेशन ऑफ L इंटू बी डी एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया. वी कैन हियर राइट दैट ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ L बी डी एक्स. तो बी डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स. अगर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल इसका ए हो जाएगा. ए क्या है, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस टोटल बॉडी. तो बी डी एक्स था एक एरिया छोटा सा स्ट्रिप का, और अगर टोटल एरिया हमने यहाँ कंसिडर किया है ए, तो लेट ए कैपिटल ए बी दी total surface area of this body or of this surface. Now integration of L, ये integration of L को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए if L we know that the total जो surface area है इसका, ये कहाँ पे act करता है, it acts on the center of gravity. Okay, it acts on the center of gravity G. तो let us consider this distance to be x. अगर ये x हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ एल जो है वो कहाँ एक्ट करेगा, जी पे एक्ट करेगा. ये जो टोटल जो लेंथ है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, व्हाट इज दिस एल, एल इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो इसमें हमने देखा कि एल क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको वर्टिकल कंपोनेंट ले करके हमने यहाँ पे एल साइन थीटा निकाला. इसका डिस्टेंस कितना होगा इन दिस केस, बट हियर x is this, if we consider that x is the center of gravity, x is the distance from the center of gravity here. Okay, so x अगर ये है तो इसको भी हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, जिसको कर सकते हैं ये अगर x हो जाता है, मान लीजिए दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो दिस डिस्टेंस इज x. सो वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे x sin थीटा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, एंड इज इट इज इक्वल टू x बार. एक्स साइन थीटा यहाँ पे हमने निकाला है जो कि इक्वल टू एक्स बार है. एक्स बार क्या है, एक्स बार हमने पहले भी देखा था कि एक्स बार इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्स्ड बॉडी फ्रॉम द लिक्विड सरफेस ओ ओ. ओके, ओ ओ से जो इमर्स्ड, तो यहाँ पे एक्स बार कर सकते हैं. देन व्हाट विल डू हियर इज जो ये जो लेंथ है इसको क्या करना है, लेंथ, ये जो लेंथ यहाँ पे है इसको अभी हटाना है. तो लेंथ को कैसे हटाएंगे, लेंथ इंटीग्रेशन है एल का, इंटीग्रेशन ऑफ एल दिया हुआ है. तो in this case the L will be nothing but the x. तो इंटीग्रेशन ऑफ x दिया हुआ है, x के जगह में सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ L दिया गया है. L क्या था, L था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिप, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप. नाउ x इंटीग्रेशन अगर दिया गया है तो उसको हम कहाँ एक्ट करा सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. तो डायरेक्ट है L के जगह में हम x प्लेस कर सकते हैं. सिमिलरली बी डी एक्स के जगह में हम टोटल एरिया A प्लेस कर सकते हैं. Okay, so now x is equal to x bar by sin theta. तो इसी चीज को हम अभी यहाँ पे लिखते हैं. Okay, so the total moment of surface area is equal to a into x, और x को क्या लिख सकते हैं, x bar by sin theta. So this is the total moment surface area about OO. Now अभी P का वैल्यू अगर हम लिखेंगे, व्हाट इज द P, P इज द टोटल प्रेशर. ओके, तो टोटल प्रेशर ऑन सरफेस कितना हो जाएगा, रो जी साइन थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ एल बी डी एक्स जो है इसके जगह में हम प्लेस करेंगे ए एक्स बार बाय साइन थीटा. सो साइन थीटा विल कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ P इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार.
So it is a very important formula, and we can see that the total pressure acting on the horizontal surface, vertical surface or the inclined surface are same. total pressure जो है वो same है, एक समान है, because we have found it in the which we have found in the previous lectures. Now the second thing that we will take out here is center of pressure. तो टोटल प्रेशर जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? वो एक्ट करता है at the center of pressure, which we have written as h bar here. ये देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो क्या है? h bar है. So this is the center of pressure here, h bar. x bar is the center of gravity. Now सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? देखिए जो टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है रो जी एल साइन थीटा बी डी एक्स. ये है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. हमने इसको पहले निकाला था. अगर इसी से हमें निकालना पड़े प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, तो प्रेशर ऑन द स्ट्रिप क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑन द स्ट्रिप हो जाएगा, दिस इज द टोटल प्रेशर. ओके, प्रेशर ऑन स्ट्रिप क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है रो जी एल साइन थीटा. ये देखिए रो जी एल साइन थीटा. एंड टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी एल साइन थीटा इंटू बी डी एक्स. सो द टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप के टोटल प्रेशर कितना आ रहा है? स्ट्रिप के टोटल प्रेशर आएगा हमारा रो जी एल साइन थीटा इंटू बी डी एक्स. सो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप. सिमिलरली अगर इसमें मोमेंट ऑफ प्रेशर देखा जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है? मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो पहले क्या था कि हम डायरेक्ट प्रेशर निकाल लिए. अब ये प्रेशर जो है कहाँ पे एक्ट करेगा? ओके, तो मोमेंट ऑफ प्रेशर निकालने के लिए डायरेक्ट टोटल प्रेशर से हम बस उसका डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर रो जी एल साइन थीटा, इसका मोमेंट क्या होगा? इसका टर्निंग मोमेंट क्या रहेगा? So this will be rho g l sin theta b dx into l. बस इसका जो ये जो डिस्टेंस है l को, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ अभी टोटल मोमेंट ऑफ प्रेशर अगर देखा जाए, टोटल मोमेंट ऑफ प्रेशर क्या होगा? टोटल मोमेंट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लेंगे, रो जी एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू बी डी एक्स. तो इसको हम लिख सकते हैं रो जी साइन थीटा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एल स्क्वायर बी dx. So now here we can see that integration of L square b dx ये क्या है? Integration of L square b dx is nothing but it is the moment of inertia. ये हमने पहले भी निकाला है. So it is the moment of inertia about OO. So we can replace it by I0. So this is the moment of inertia. तो इसको जो डेजिग्नेट रिप्रेजेंटेशन है I0 से होता है. Okay, so now we can say that total moment of P will be equal to rho g sin theta into L square, इंटीग्रेशन ऑफ L square b dx के जगह में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I0. Okay, but we also know by parallel axis theorem, okay, by parallel axis theorem we know that I0 is equal to Ig plus AH square. I0 is equal to Ig plus AH square. What is H here? H क्या है यहाँ पे? H है height. Height from the height of the center of pressure from the submerged body. देखिए यहाँ पे अगर H रहेगा, H क्या रहेगा? H is the height from the height of the center of gravity. Height of the center of gravity ये रहेगा height x. But
हमेशा हम किसको लेते हैं, एक्स बार लेते हैं, एक्स बार के थ्रू लेते हैं, बट ये एक इंक्लाइंड बॉडी है इसीलिए यहाँ पे एक्स है। अभी इसको भी हमको लाना है एक्स बार की फॉर्म में। So now what we will do here is that I0 is equal to IG plus AH square। अभी इस चीज को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सो इक्वेशन वन नाउ बिकम्स, इक्वेशन वन में हमको क्या करना है, I0 को रखना है। सो रो जी साइन थीटा इंटू I0, I0 में के जगह में हम रख सकते हैं IG plus AH square। Okay, we can write it here. Also, we have skipped one formula here. This is correct up to here, but हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे स्किप किया है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस साइड हम उसको कर लेंगे। तो जब हमने टोटल मोमेंट निकाला है, यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे निकाला है रो जी साइन थीटा इंटू I0। ऑल्सो वी नो दैट टोटल मोमेंट तो हमने ये निकाल लिया है। अभी हमको ये भी पता है कि टोटल मोमेंट जो है, टोटल मोमेंट जो है, अगर इसको हम टोटल मोमेंट अबाउट ओ ओ, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, अगर ये मेरा बॉडी है और दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इट विल एक्ट एट डिस्टेंस, इट इज एक्टिंग एट डिस्टेंस ऑफ एच बार। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एच बार डिस्टेंस फ्रॉम द सबमर्ज्ड बॉडी। तो एच बार टोटल मोमेंट ऑफ प्रेशर P, let us consider total moment of pressure is P into let this distance be h। तो ये कहाँ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, टोटल मोमेंट कितना h डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो जनरली वी कैन राइट इट एज P इंटू एच को हम किस साइज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s sin थीटा इज इक्वल टू h बार। So we can write that h is equal to h bar by sin theta। Okay, so here what we will do is we will write P into h bar by sin theta। Now we have taken out in the previous example, इसमें हमने निकाला है P का वैल्यू which is equal to rho g a x bar। यहाँ पे हमने इसको निकाला है rho g a x bar। So यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका वैल्यू पुट करेंगे P के जगह में। P is equal to rho g a x bar into h bar by sin थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ा देर में यूज करेंगे। व्हाट वी विल डू इज नाउ वी विल इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर लेंगे फर्स्ट। So this is equation 1 and this is equation 2। So equating, here we can write that equating इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, रो जी साइन थीटा into I0 is equal to rho g a x bar into h bar by sin theta। So this is the formula that we will get। अभी रो जी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली h बार जो है, h बार क्या बन जाएगा, h बार बन जाएगा I0 sin square theta divided by ax bar। Okay, so it is now this is the formula here, h bar is equal to I0 sin square theta by ax bar by now by parallel axis theorem। अभी parallel axis theorem से हम इसको लगाएंगे। parallel axis theorem क्या होता है, वो होता है I0 is equal to IG plus AH square। ओके, बट इन दिस h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है x बार।
So here we can write that ax bar square. It is by parallel axis theorem. Now अभी equation 1 में putting in equation 1, अभी equation 1 में इसको put करेंगे. So h bar is equal to ig प्लस ए एक्स स्क्वायर. हमने यहाँ पे इक्वेट क्यों किया है इसको पहले समझ लेते हैं. यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ हम तो पहले कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है एच बार. एच बार हमारा मेन काम है, इसीलिए बिना एच बार का हम अगर इसको इक्वेट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो नहीं होगा. इसीलिए हमने दोनों को पहले सब्स्टिट्यूट कर लिया, इक्वेट कर लिया इक्वेशन को, ताकि जो अननेसेसरी टर्म्स है वो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकें और एच बार को जो है फॉर्मूला में ला सकें. ओके, नाउ ए एक्स बार 2, ये है आई जीरो इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार. तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा एक्स बार. ये एक बॉडी है जो कि इमर्स्ड है. लेट मी ड्रॉ अ सेकंड ड्राइंग ऑफ इट. ये एक बॉडी है जो इमर्स्ड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना एक्स डिस्टेंस में है, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है एच डिस्टेंस में है. एंड फ्रॉम दिस सरफेस इट कैन बी सेड एज एक्स बार, और यहाँ से इसको अगर कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा एच बार. ओके, तो इसीलिए ये एक्स डिस्टेंस में है. अभी एक्स की जगह में हमें वैल्यू किसका पुट करना है, एक्स की जगह में हमको वैल्यू एक्स बार का पुट करना है, क्योंकि वर्टिकली जो डिस्टेंस है उसको पुट करने से इक्वेशन ज़्यादा इजी बनता है और हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा. सो वी कैन पुट इट एज ए इंटू एक्स बार. एक्स बार की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह में, एक्स स्क्वायर की जगह में हमने पहले देखा था कि एक्स बार बाय साइन थीटा पुट कर सकते हैं. तो अभी इसका स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे. नाउ क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार. अभी देखिए नाउ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, इसका हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार, ये ठीक है, प्लस ए जो है कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ पे साइन थीटा है, ऊपर में स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, एक्स बार कट जाएगा, एक एक्स बार कट जाएगा और एक एक्स बार रहेगा. तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. तो एच बार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए. तो इसको याद रखिए, ये दो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला वाला फार्मूला तो खैर आपको याद रह जाएगा क्योंकि सबको के लिए सेम है, P इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, एंड हियर द सेकंड फार्मूला इज H बार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा divided by a x bar plus x bar. So we have completed this module of inclined submerged body, the pressure acted on inclined submerged body. Now in the next module we will see the hydrostatic pressure acting on a curved immersed body. Okay.